Hello and welcome everybody to the chapter of reaching the age of adolescence. In our exam from this chapter, every year we are getting one question. Assume that this chapter is as important as the animal reproduction chapter. In animal reproduction chapter, every year getting one question. In this chapter also, we are getting one question every year. And why is it so? Because this chapter entails very key aspects of growth and development of humans and other living organisms. Whatever the question will be, the question will not be beyond what we are covering today. जो भी आने वाला है इसी में से आने वाला है. इनफैक्ट इसी में से किसी जो हम आज डिस्कस करेंगे उसी में से कोई एक लाइन पिकअप कर ली जाएगी और क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा. रिपीटेडली थायमिन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, मेटामॉर्फोसिस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्रोथ हार्मोन्स के ऊपर बात की गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात की गई है, डेवलपमेंटल रोल्स के ऊपर बात की गई है. लेट अस बिगिन एंड डिस्कस. नाउ वी नो दैट all the living organisms have the capacity of reproduction. In the previous sessions we have also discussed the process or the mechanism of reproduction, but the ability of reproduction is not what we have from the beginning or from the early age. Like here we have in the diagram, you can see that first we are infant and then we are toddler and then we become adolescent, then we become adult, finally we achieve the old age. So do we have the capacity to reproduce at an early age? The answer is no. Only after a certain period we develop this ability, and that is what we will be talking about, that when we achieve this, and when we achieve this ability, what are the other changes we observe. Let us begin. In the previous chapter we have learned how animals reproduce. We know that it is only after growing up to a certain age that human being and many other animals can reproduce. And why we can reproduce only after a certain age? Because of presence of only after a certain age we develop some hormones which play a key role in it. Now here we will actually talk about the changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. Now we have already discussed the various reproductive organs or animal reproductive organs of humans or animals. And here we will discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult. So what is it? What are those factors? Because of this, the transformation from child to an adult is happening. That we will discuss today. Let us move. Now, some of them were looking very funny with a hairy line above the lips. Now, you see that as we grow up, we develop a hairy line above our lips. And when we go to our parents, we ask our parents that, what are these changes happening? Then our parents explain them that you are growing up. इनफैक्ट द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, ये जो बड़े होने की प्रोसेस होती है, ये सडनली नहीं होती. दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस द डे वी आर born. But these characters are shown only after a certain age. But upon crossing the age of 10 or 11, there is a sudden spurt. Spurt means change or a quick change of growth which becomes noticeable. So the growth is happening since the day we are born. But these changes in our body, they takes place at the age of 10 or 11, where these changes become noticeable. They are very quick to happen. Now we know that growing up is a natural process. The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. Question पूछा जा सकता है, true or false में? What is adolescence?
It is the changes in the body which eventually leads to the development of reproductive ability or reproductive maturity. Adolescence begins around the age of 11 and lasts up to 18 और 19 years. वैसे तो फिगर रैंडम है, लेकिन क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया है, पूछा जा सकता है कि एडोलसेंस का जो पीरियड है वो कौन सा पीरियड होगा. सो 11 to 18 या 11 to 19. अब ये भी क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज इट वेरीज इन द गर्ल्स एंड बॉयज़. गर्ल्स में अलग होता है, बॉयज़ में अलग होता है, इसलिए अलग अलग दिया है 18 and 19. Since the period covers teens 13 to 18 or 19, adolescence is also called a teenagers. क्वेश्चन बन सकता है, वैसे चांसेस कम है, बट हाँ, adolescence teenagers are they same? Yes, they are same. Why they are same? Because teen is 13 to 18, 13 to 19. Adolescence is 11 to 18, 11 to 19. So teen actually comes inside adolescence. तो उसका वो सब ग्रुप हो जाएगा. Next. In girls, the adolescence may begin a year or two earlier than in boys. तो गर्ल्स के अंदर जो adolescence होता है वो पहले स्टार्ट होता है. ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बन सकता है. The period of adolescence varies from person to person. ये person to person के ऊपर भी वेरी करेगा based on what are their hormonal conditions, what is their metabolical rate, what is the environment. And the human body undergoes several changes during adolescence. कई सारे जो changes आते हैं, आज हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं. Now, what about these changes? These changes mark the onset of puberty. The most important change which marks puberty is that boys and girls became capable of reproduction. So, question पूछा जा सकता है, what is puberty? Puberty is that stage or onset of that stage where the boys and girls are now capable of reproduction. Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. Question ये भी बन सकता है, will puberty ever end? Yes, it will end. It will end when? It will end when the individual or human beings, they will reach the end of reproductive maturity, where they are no more, they are able to reproduce. That is called maturity of puberty. Changes at puberty increase in height. The most conspicuous मतलब noticeable होता है. तो सबसे पहली जो चेंज होती है नोटिसेबल वो होती है कि हाइट में चेंज आएगी. चेंज ड्यूरिंग puberty is the sudden increase in the height. At this time, the long bones, that is the bones of arms and the legs, they elongate and make a person tall. So पहला जो सबसे नोटिसेबल चेंज है वो हम ये देखेंगे कि हम सडनली लंबे होने लगते हैं. स्कूल की लाइन में, प्रेयर की लाइन में जब आप सबसे पहले खड़े हो रहे थे, अब आप थोड़ा पीछे आएंगे बेस्ड ऑन हाइट जब आप अरेंज किए जाएंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज, और ऐसा क्यों होता है? वाई क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज हमारे आर्म्स, हमारे हाथों के जो बोन्स होते हैं और पैरों के जो बोन्स होते हैं वो लंबे होना शुरू हो जाते हैं. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि हमारी पूरी बॉडी के बोन लंबे हो जाते हैं? नहीं, ओनली हमारे हाथों के और पैरों के हमारे जो बोन्स होते हैं, जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, वो सडनली नोटिसेबल होने लगते हैं, वो इलोंगेट होने लगते हैं और जिसकी वजह से हम टॉल लगने लगते हैं. Now in the textbook there is a relative chart given actually, और चार्ट पर क्या बन सकता है वो भी आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बॉयज़ की और गर्ल्स की एक रिलेटिव कंपैरिजन दी हुई है. एट द एज ऑफ 8 years बॉयज़ फुल हाइट विल बी ओनली 72%, बट गर्ल्स फुल हाइट विल बी 77%. मतलब जो भी उनकी हाइट रहेगी उसका 77% वो 8 years में अचीव कर लेते हैं. 9 years 75%, गर्ल्स 81%. 10 years 78% बॉयज़, 84% गर्ल्स. 11 years 81% boys, 88% girls. 12 years 84% boys, 91% girls. 13 years 88% boys, 95% girls. 14 years 92% boys, 98% girls. 15 years 95% boys, 99% girls. 16 years 98% boys, 99.5% girls. 17 years 99% boys, 100% girls. अब यहाँ पर ये थोड़ा आपको वैसे तो ईयर बाय ईयर परसेंटेज वैल्यू वो नहीं पूछेंगे क्योंकि ये फिक्स नहीं है, पर हाँ ये एक चीज़ बन सकती है. एट द एज ऑफ 17 गर्ल्स कितनी हाइट अचीव कर लेती है? तो फुल हाइट कर लेती है. बॉयज़ कितना कर पाते हैं? तो फुल नहीं कर पाते हैं, 1% 2% कम कर. 18 में बॉयज़ फुल हो जाते हैं, गर्ल्स ऑलरेडी फुल हो चुकी है. अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अचीव्स देयर हाइट फर्स्ट, गर्ल्स या बॉयज़? आपको क्या लगेगा? नहीं, इसका आंसर तो बॉयज़ होना चाहिए, गर्ल्स की हाइट तो कम होती है, बट आंसर इज द रिवर्स वन. आंसर क्या है? गर्ल्स अपनी हाइट पहले अचीव कर लेती है. ये हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मोर ओवर, ऑल द बॉडी पार्ट्स
they are growing at a different proportion. All parts of the body do not grow at the same rate. Sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescent look oversized and out of proportion with the body. ये जो अभी आपकी करंट जो आपकी एज चल रही है, when you are say 13 years of age, 14 years of age, 15, इसमें क्या होता है कि जनरली थोड़ी हमारी बॉडी जो होती है डिस्प्रपोर्शनेट होती है. क्यों होती है? क्योंकि हमारे हाथ थोड़े से लंबे होंगे, हमारे पैर थोड़े से लंबे होंगे एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द अदर पार्ट और अदर बोन्स ऑफ द बॉडी. तो इसकी वजह से थोड़ा हमारा वो डिस्प्रपोर्शनेट बॉडी हो जाती है, ऐसा हाथ थोड़े ज़्यादा लंबे दिखाई देते हैं. बट सून द अदर पार्ट्स ऑल्सो कैचअप एंड रिजल्ट इन अ प्रोपोर्शनेट बॉडी. पर ये हमेशा ज़्यादा देर तक नहीं रहता. तो बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो भी कैच कर लेते हैं, और जैसे ही वो कैच कर लेते हैं, कैच करने के बाद वो भी सेम हो जाते हैं. तो हमारी बॉडी पूरी प्रोपोर्शन में आ जाती है. नेक्स्ट, you must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family member. This is because height depends on the genes inherited from parents. It is however very important to eat the right kind of food during these growing years. यहाँ पर बात चल रही है characteristic which we inherit from our parents, और उसमें सबसे बात बताई जा रही है हाइट की. तो हमारी जो हाइट होती है, जब हम अपनी फुल हाइट अचीव कर लेंगे तो वो हमारे किसी न किसी फैमिली मेंबर के बराबर होती है. अब ऐसा नहीं होगा कि हमारी फैमिली में सभी के सभी 6 फीट के हैं और हम 10 फीट के निकल जाएं. दिस विल नॉट हैपन. इट विल बी समहाउ प्रोपोर्शनेट. अगर सारे के सारे लोग हमारी फैमिली में 6 फीट के हैं तो हम भी शायद 6 फीट या उससे 1-2 फीट ज़्यादा या 1-8 फीट हम थोड़े से उसके कम हो जाएंगे. सो इंच थोड़े ज़्यादा या इंच में कम हो जाएंगे. बट मोर और लेस हाइट जो है वो हमारी फैमिली मेंबर से सेम ही रहने वाली है. और ऐसा क्यों होने वाला है? बिकॉज वी हैव रिसीव्ड द जीन्स फ्रॉम द पेरेंट्स. दैट इज वाई हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक रहने वाले हैं उनके ऐसे सेम रहने वाले हैं. हाउएवर द इंपॉर्टेंट पार्ट इज वी शुड बी कंज्यूमिंग द बैलेंस डाइट. अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो हम वो भी हाइट अचीव नहीं कर पाएंगे. दैट रिमेन्स वन ऑफ द की पॉइंट्स हियर. Now talking about the balanced diet or the right kind of food. Right kind of food means we should get proper nutrients. Carbohydrates होने चाहिए, fats होने चाहिए, vitamins होने चाहिए, proteins होने चाहिए, other nutrients हैं वो होने चाहिए. Why? Because it will help in the development. Protein we know will help in the muscle building. It's a building block of the human body. Carbohydrate, fats, we all need this. This helps the bone. Balanced diet में हमें bones, muscles and other parts of the body will get adequate means proper nourishment for growth. We'll find nutritional needs of the adolescent discussed later in this lesson. हमें क्या क्या न्यूट्रिशन के इस एस्पेक्ट में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, that we will discuss in our upcoming. Next, changes in the body shape. You must have noticed that boys in your class have broader shoulders and wider chests than boys in junior classes. So this is another very identifiable change कि boys के जो shoulder होंगे वो थोड़े ब्रॉड हो जाएंगे, चेस्ट हो जाएंगे, थोड़े वाइड हो जाएंगे. दिस इज बिकॉज यू हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ. क्वेश्चन बन सकता है कि क्या प्यूबर्टी में शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, चेस्ट वाइड हो जाती है? आंसर इज यस, हो जाती है. और ऐसे कई सारे चेंजेस अब हम डिस्कस करने वाले हैं. वैसे आज तक इन चेंजेस पर, बॉडीली जो चेंजेस है, इस पर क्वेश्चन नहीं आया है क्योंकि बहुत मेजर पॉइंट ये नहीं है. इस चैप्टर में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पूछने के लिए, पर फिर भी आपको ये छोटी सी चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी ज़रूरी है. ट्रू फॉल्स में या रीज़न एंड एक्सप्लेनेशन में या असर्शन रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं. नेक्स्ट, इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर. तो जैसे बॉयज़ में शोल्डर चेस्ट वाइड होते हैं, गर्ल्स में ए पार्ट बिलो द वेस्ट वो थोड़ा सा वाइड हो जाएगा. इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली मतलब थोड़ा नोटिसेबल, थोड़ा इंपॉर्टेंटली, एंड देन इन गर्ल्स. तो बॉयज के अंदर जो मसल डेवलपमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा होगा. 10 चेंजेस अकर इन अडोलसेंट इन बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या अडोलसेंट में बॉयज और गर्ल्स में अलग अलग चेंजेस? बिल्कुल अलग अलग चेंजेस आते हैं. बॉयज में अपर पार्ट में देखा, गर्ल्स में हमने लोअर पार्ट में देखा.
मसल डेवलपमेंट बॉयज में अलग होता है, गर्ल्स में थोड़ा कम होगा. लुक एट दिस हियर. यहाँ पर उन्होंने एज दिया हुआ है और उनका हाइट का जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है वो गर्ल्स की है और जो पिंक है वो बॉयज़ की. तो गर्ल्स अपनी हाइट अचीव कर लेती हैं एट द एज ऑफ 17 और बॉयज़ अपनी हाइट अचीव करते हैं एट द एज ऑफ 18. वही हमने डिस्कस किया. पहले क्वेश्चन बन सकता है कि पहले कौन अपनी हाइट अचीव करता है. आंसर इज गर्ल्स अपनी हाइट पहले 100% हाइट पहले अचीव कर लेती हैं. Now, initially girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. पहले तो गर्ल्स का डेवलपमेंट थोड़ा तेजी से होता है, बट आगे चल के दोनों की जो हाइट है वो बराबर 100% डेवलप हो जाती है. द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. अब हाइट आपने देखा है सभी की अलग अलग होती है कि कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है. सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली. कुछ लोग होते हैं कि प्यूबर्टी है 11 से 19 के जो फेज़ होती है उसमें वो अपनी हाइट अचीव पूरी कर लेते हैं और जल्दी ही कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो धीरे धीरे करते हैं. तो वो दैट विल वेरी बेस्ड ऑन व्हाट इज़ योर ओवरऑल एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ योर डाइटरी हैबिट्स, व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज डू यू डू. वॉइस चेंज वेरी इंपॉर्टेंट. डू यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स. At puberty, the voice box or the larynx begins to grow. Very important. Question बन सकता है, क्या बन सकता है? That is there a noticeable change in the voice? Or why is there a change in the voice? The answer is because of the growth of larynx. Larynx की growth की वजह से voice में आप change notice करेंगे. Boys develop a larger voice box. Now we know कि boys की जो sound होती है उस it is a लो पिच साउंड, और गर्ल्स की जो साउंड होती है इट इज अ हाई पिच साउंड. दिस वी विल डिस्कस इन द चैप्टर साउंड इन ग्रेट डिटेल एक्चुअली. तो बॉयज में और गर्ल्स में दोनों में ही वॉइस बॉक्स जो लैरिंग्स है हमारा वो अब डेवलप होने लगता है. बिकॉज ऑफ दिस द साइज और द क्वालिटी ऑफ वॉइस विल चेंज. वॉइस थोड़ी सी मोटी होने लगेगी. In girls, the larynx is hardly visible from the outside because of its small size. बात करें larynx की तो अगर आप अपने गले में देखो सामने कुछ उभरा हुआ सा जो पार्ट है वो larynx है, जो बॉयज़ में विजिबल होता है, पर गर्ल्स में उसका साइज छोटा होने की वजह से वो क्लियरली उतना विजिबल नहीं है. जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच वॉइस whereas boy have a deep voice. deep voice मतलब लो पिच है, गाढ़ी है, थोड़ी मोटी है. गर्ल्स की हाई पिच वॉइस किसकी? श्रिल वॉइस जो होती है वो बर्ड्स की होती है. तो आप याद रखिए हाई पिच मतलब पतली आवाज़ होगी और लो पिच मतलब थोड़ी आवाज़ मोटी होगी. इन अडोलसेंट बॉयज समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम्स होर्स. कभी कभी ऐसा होता है कि जो लैरिंग्स है, जो वॉइस बॉक्स है, उसके जो मसल्स हैं थोड़े वो ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, इसलिए वॉइस में वॉइस क्या हो जाएगी? होर्स मतलब थोड़ी फट जाएगी. दिस स्टेट में रिमेन फॉर फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल. तो कुछ समय के लिए बॉयज़ में हो सकता है ये कंडीशन कंटिन्यू रहे, पर उसके बाद ये सिचुएशन ठीक हो जाती है. नाउ आफ्टर द चेंज इन द वॉइस बॉक्स देयर इज ऑल्सो rather the most seen or the most important ones which will make us capable of reproductive activity is the development of sexual organs. Now we have already discussed the various types of both male reproductive and female reproductive organs. Let us now discuss the changes in them one by one. At puberty, the male sex organs like the testis and the penis, they develop completely. इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता. द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स. इस पर भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा. अब क्यों नहीं पूछा जा सकता? भाई टेस्टिस का तो फंक्शन ही वही है, तो उस पर ये क्वेश्चन कुछ ट्रिकी नहीं बन सकता. नो प्रॉब्लम कि एडोलसेंस में, और अगर पूछा भी गया कि इन एडोलसेंस डज इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आंसर विल बी यस. तो इस पर क्वेश्चन ना पूछा गया है, चांसेस भी नहीं है. इन गर्ल्स the ovaries enlarge and eggs begin to mature. चांसेस है पूछा जा सकता है कि ओवरीज अब एनलार्ज होने लगी हैं और एग्स जो होते हैं अब इनके मैच्योर, एंड ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स.
और अब क्योंकि ओवरीज एनलार्ज हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, वो एग्स अब वहाँ पे मैच्योर हो रही हैं, तो अब वो एग्स को रिलीज भी करना उन्होंने स्टार्ट किया है। आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, चांसेस भी कम है। ये यहाँ पर इन्होंने एक वॉइस बॉक्स की इमेज दी हुई है टेक्स्ट बुक में शो करने के लिए कि ये क्या है। दिस इज द वॉइस बॉक्स। ये हमारा लैरिंग्स है, एडम्स एप्पल इसका नाम है। यहीं पर थायराइड ग्लैंड होता है, इट इज़ अ एच शेप ग्लैंड, उसी को बटरफ्लाई ग्लैंड भी हम बोलते हैं। दिस इमेज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। Now after the reproductive organs reaching mental, intellectual and emotional maturity, adolescence is also a period of change in a person's way of thinking. Now this is why this chapter is important, because it deals with the psychological development or rather brain development of both boys and girls. इसीलिए ये चैप्टर का थोड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रहा है, सेक्सुअल ऑर्गन्स में डेवलपमेंट हो रहा है, बट मोर इंपॉर्टेंटली मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ मेनी हार्मोन्स, और इसीलिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। Adolescents are more independent than before and are also called self conscious. ये वो पीरियड है हमारा सेल्फ कॉन्शियस, हमारा इंट्रोस्पेक्शन, हमारे अपने बारे में एक सेल्फ इमेज हम डेवलप करने लगते हैं। स्कूल जाते हैं तो दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, क्लासमेट्स के साथ रहना पसंद करते हैं, घर आते हैं अकेले रहना पसंद करते हैं, पापा मम्मी से, भाई बहनों से दूर अपने अलग रूम में रहना पसंद करते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ डेवलपमेंट, हम सेल्फ कॉन्शियस हो रहे हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। अब आप कई सारी चीज़ आप सोचना स्टार्ट करोगे, कई सारी चीज़ आप अपने बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में, अपनी सेल्फ इमेज के बारे में, ये सारी आप डेवलपमेंट आपके अंदर आने लगेंगे। आपका मेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। बहुत सारी वरीज होती हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। सो दिस इज अ टाइम व्हेन यू शुड बी वेरी वेरी कॉशियस। गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा, थोड़ा डर ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा हंसी आएगी, तो कई सारे हार्मोनल चेंजेस आपको होते हैं। वाई? बिकॉज your body is growing. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity of learning. Most important part. This is the period जब आपका जो learning ability है वो सबसे ज़्यादा है. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. अब कई लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते, गुस्सा हो जाते हैं, नेचर उनका थोड़ा rigid हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं. Why? Because this is happening. Because this is happening because of your age, because of the hormonal changes. But as adolescent learners, you should know that there is no reason to feel insecure. पर आपको इसमें बता रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है. दिस इज जस्ट हैपनिंग बिकॉज हमारे ब्रेन में डेवलपमेंट हो रहे हैं, कई सारे चेंजेस हो रहे हैं. दीज चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. वेरी वेरी बेसिक पॉइंट. टॉकिंग अबाउट इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड. During puberty, the secretion of sweat glands and sebaceous glands increases. Sweat gland, sebaceous gland are basically the oil glands. Sweat glands मतलब जिससे पसीना आता है. Sebaceous gland मतलब आपने नोटिस किया होगा हमारी जो स्किन होती है थोड़ी ऑयली रहती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीशंस. तो ये जो होते हैं थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं इनकी एक्टिविटी में, इसलिए हमको थोड़े ज़्यादा आपको पिंपल्स वगैरह इस पीरियड में आपको थोड़े देखने को मिलते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ दीज ग्लैंड्स. नेक्स्ट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट. यू हैव लर्नड दैट testes and ovaries are the reproductive organs. They produce the gametes, that is sperm and ova. Sperm is produced by male reproductive organs, ova is produced by female reproductive organs, ovaries and testes. पहले लिखा हुआ है, so I'm just writing T and O. The testes and ovaries, they secrete sexual hormones. We have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. ये जो हम changes की बात कर रहे हैं ये इन्हीं hormones की वजह से होते हैं. Further, the sex hormones are under the control of hormones from the pituitary gland. ये question बन सकता है that the sexual hormones or sex hormones are under the control of which gland? Answer is pituitary gland. Question पहला यहाँ पर हमें ये बन सकता है. Next, the pituitary gland secrete, or rather the pituitary secretes many hormones, one of which makes ova mature. ये तो हमने पहले डिस्कस किया.
कि ओवरीज जो है अब वो एग को रिलीज करने लगती है, वो मैच्योर हो रहे हैं, वो रिलीज होने लगते हैं. तो दिस इज द वन, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द वन विच मेक्स द ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस. तो पूछा जा सकता है जो फॉर्मेशन होता है दिस इज बिकॉज ऑफ विच ग्लैंड. आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड. विच हार्मोन, तो सेक्स हार्मोन लिखा है तो वो नहीं पूछ सकते हैं कि सेक्स, बिकॉज उसका कुछ नाम नहीं दिया है इन्होंने. ग्लैंड पूछ सकते हैं पिट्यूटरी. एज दिस फीचर्स हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. Boys also develop hair on their chest. In both boys and girls, hair grows under the arms and in the region above the thighs or in the pubic region. ये सारे हेयर डेवलपमेंट की बात चल रही, तो इस पे क्वेश्चन पहले भी नहीं आया, आगे भी चांसेस नहीं है एक्चुअली. छोटा सा एक चार्ट दिया हुआ है, देख लेते हैं. हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज और रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड ईस्ट्रोजन इन फीमेल. पहले क्वेश्चन आया है, आगे भी पूछ सकते हैं कि मेल का जो सेक्सुअल हार्मोन है वो क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन है. फीमेल का क्या है, एस्ट्रोजन है. रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम. अब ये जो दोनों ही हॉर्मोन्स हैं ये कहाँ आएंगे, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेंगे. और ब्लड स्ट्रीम, यू नो ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टर. फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इट रीचेज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और द टारगेट साइट. इट स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. तो जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होगी चेंजेस ये लेकर आएंगे. तो अब इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन इसके स्टेप्स पे आ सकता है कि स्टेप्स दे दिए, बोले इनको अरेंज करके दो. तो सबसे पहले हार्मोन रिलीज होंगे, कौन कौन से, अलग अलग दोनों नाम लिखे हुए हैं. ब्लड में जाएंगे, ब्लड से अलग अलग बॉडी पे जाएंगे और जैसे ही प्यूबर्टी आएगी ये स्टिमुलेट हो जाएंगे, ये बॉडी में जो चेंजेस है उसको लेकर आते हैं. Next, the changes which occur at adolescence are controlled by hormones. Hormones are chemical substances. ये एक और क्वेश्चन बन गया. What are hormones? Hormones are chemical substances. These are secretions from endocrine glands or endocrine system. Another एक और क्वेश्चन बन गया. Hormones कहाँ से secrete होते हैं? Endocrine gland से, endocrinal system से. आगे चल के इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे. The male hormone or testosterone begins to released by the testis at the onset of puberty. पहले देखा हमने. This causes changes in the boys about which you have just learnt. For example, growth of facial hair. Once puberty is reached in girls, ovaries begin to produce the female hormone or estrogen, which makes the डेवलपमेंट ऑफ द, है ना, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का. इस पर क्वेश्चन हमें नहीं पूछा गया, पहले भी नहीं पूछा गया, आगे भी नहीं आ सकता. मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, मदर्स में जो मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स बनते हैं और मैमरी ग्लैंड्स उन्हें बोलते हैं, दे ऑल्सो डेवलप्ड इनसाइड. The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from endocrine gland called pituitary gland. अच्छा, अभी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. There are जो हमारे हार्मोनल सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम को पहले तो नाम दिया है एंडोक्रिनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम. और उसमें दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन. और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि हमारे सर में प्रेजेंट है, बैक ऑफ द हेड जो प्रेजेंट है, ये एक टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है. तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि क्या ये दोनों अलग अलग तो नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड अलग है, एंडोक्राइन अलग है, नहीं. पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब सिस्टम हो गया, और उसमें से कई सारे ग्लैंड्स हैं. पिट्यूटरी इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड. तो वो दोनों अलग अलग नहीं है, पिट्यूटरी टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड होता है. तो यहाँ पर कुछ कुछ चेंजेस हमने देखे. अब कहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, कहाँ नहीं बन सकते वो भी आप देख चुके हैं. जिसको गो थ्रू करेंगे तो बेटर होगा. बाकी इसमें जो मेजर पॉइंट्स है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, हम विल कीप ऑन डिस्कसिंग. Now that we have understood the role of the hormones, or rather the chemical substances, basically in these functions, or more importantly we have understood the functions of endocrine gland or the pituitary gland, which controls basically the secretion of these hormones. Let us now understand the role of hormones in reproductive functions. Role of hormones in initiating reproductive function. Most important is the endocrine glands. Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called the target site. So let us understand the mechanism. Endocrine gland will release the required hormone into the blood, and we know blood is the transporter of our body. So traveling via the bloodstream, the hormone will reach the target site.
and when it will reach the target site wherever the action is desired, once the hormone reaches, then the target site will respond to the hormone. There are many endocrine glands in our body. Endocrine glands are also called ductless gland. Ductless means उनको कोई पाइप नहीं होती अपने, इसलिए वो ब्लड में अपने हॉर्मोन्स को रिलीज कर देते हैं, तो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसफर होगा पूरे बॉडी में, सर्कुलेशन जो होगा केमिकल्स का, हॉर्मोन्स का रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो ब्लड के थ्रू ही होगा, इसलिए उनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोला जाता है. ये मैकेनिज्म हो सकता है, क्वेश्चन पूछ लें, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वन पॉसिबिलिटी. सेकंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो डक्टलेस ग्लैंड. छोटा सा पॉइंट है पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मूविंग फर्दर, most important, the menstrual cycle, it is controlled by hormones. Let us understand, as we have discussed earlier, that during the adolescent phase or during the puberty phase, there is a capacity or there is a ability of ovaries to develop eggs. Let us now understand that process in slightly better format. This cycle, talking about the menstrual cycle, it includes the maturation of the egg. This is the first step. Its release. Second step, thickening of uterine wall and its breakdown if pregnancy does not occur. So there are these 4 steps of menstrual cycle. First, egg maturation. Second, egg release. Third, thickening of uterine wall. And the fourth, the breakdown of uterine wall if there is no pregnancy. Pregnancy means if there is no male gamete will come into the contact of the eggs, there will not be any pregnancy. Next, in case the egg is fertilized. Fertilized means if it meets the male gamete, then fertilization will occur. In case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets embedded. Embedded means it gets attached in the uterus, or rather uterus wall, for further development, as we have discussed in the animal reproduction topic. जरा इसको समझ लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले एग मैच्योर होगा, उसके बाद एग रिलीज होगा. एग रिलीज होगा तो उसे तो यूटेरस से ट्रांसफर करना है, तो यूटेरस की जो वॉल हो जाएगी वो थिक हो जाएगी. अब अगर उसने यूटेरस तक ट्रांसफर किया, यूटेरस में वो बैठा है, और अगर वहाँ पर उसे मेल गैमेट नहीं मिलेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और इस केस में यूटेरिन वॉल क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी. नाउ दिस इज, अब उसके आगे, इन केस द एग इज फर्टिलाइज, सपोज उसे मेल गैमेट मिल गया, तो वो क्या होने लगेंगे, वो जाइगोट बन के वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, और जब वो उनका जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वो डिवाइड होकर अपने फर्दर प्रोसेस पे चले जाते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो क्या होंगे, वो चिपक जाएंगे यूटेरस के वॉल पर जाकर चिपक जाते हैं, और उसके बाद आगे डेवलपमेंट वहीं से होता है. नेक्स्ट, द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें ये बन सकता है that when adolescents become capable of reproduction, answer is when they have the ability of testes and ovaries is to when they develop the ability to produce gametes, that is when we say that they are capable of reproduction. So production of gametes is the point. The capacity of maturation and production of gametes lasts for much longer time in males than in females. तो ये जो gametes की प्रोडक्शन की बात चल रही है, ये इसमें एक रिलेटिव कंपैरिजन किया है कि मेल्स में ये जो कैपेसिटी होती है gametes को प्रोड्यूस करने की, ये थोड़ी ज़्यादा होती है. फीमेल्स के अंदर gametes को प्रोड्यूस करने की जो ड्यूरेशन होती है वो थोड़ी कम होती है. इससे कम और ज़्यादा से मतलब है कि फीमेल्स आफ्टर अ सर्टेन एज दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस gametes, but males after a very older life they will be able to produce the gametes. बस यही उन्होंने बताया. जैसे मेल्स में अराउंड 70, 80 तक रहता है, फीमेल्स में 45, 50 तक होता है. दैट इज कमिंग अप, वी विल डिस्कस इट. Next, in females, the reproductive phase of life begins at puberty, that is 10 to 12 years of age. तो फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज प्यूबर्टी पे ही स्टार्ट हो जाता है 10 to 12 ईयर्स में, एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स. तो फीमेल्स में 45 to 50 ईयर्स में ख़त्म हो जाता है, लेकिन मेन में क्या होता है, ये थोड़ा और लेट 60, 65 तक रहता है.
द ओवा बिगेन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो जैसे ही प्यूबर्टी आती है ओवा मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। वन ओवा मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय one of the ovaries once in about 28 to 30 days. Now understand, we have two ovaries. One is left ovary, one is right ovary. और इन्हीं का फंक्शन है एग को रिलीज करना, उसी को हम ओवम बोलते हैं, एग का ही दूसरा नाम ओवम है। तो एक बार क्या होता है, ये लेफ्ट साइड से निकलती है, एक बार ये होता है राइट साइड से। ऐसा विल नॉट कम आउट फ्रॉम बोथ द साइड्स। अगर ये दोनों साइड से निकल जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्विंस। प्रेगनेंसी में ट्विंस होने के चांसेस इसमें बनते हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही एग्जाम में आएगा। तो हमारे ओवरीज में से एक एग लेफ्ट साइड से निकल सकता है या राइट साइड से, तो वो चेंज होते रहता है। कभी वो लेफ्ट से निकलेगा, मतलब ऑल्टरनेटिवली एक बार लेफ्ट एक बार राइट, ऐसे चेंज होता रहता है वो। और उसके बाद ये 28 to 30 डेज का ये पीरियड होता है जहाँ पर ये एग रिलीज होता है। एग रिलीज होगा, एग मैच्योर होगा, पहले मैच्योर होगा, उसके बाद रिलीज होगा, उसके बाद वो यूटेरस पर जाएगा। यूटेरस पे अगर उसका फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो यूटेरस वॉल पर चिपकेगा, नहीं हुआ तो यूटेरस वॉल क्या हो जाएगी, जो थिक हो गई थी अब वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। दैट इज द process. Now during this period the wall of the uterus becomes thick. अभी भी सोचने वाली बात है कि यूटेरस की वॉल थिक क्यों हो रही है, क्यों? क्योंकि उसे एग को रिसीव करना है, बिकॉज इट हैज टू रिसीव द एग इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड एंड बिगिन टू डेवलप। तो अगर तो उसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसे जितना भी जो भी प्रोसेस होता है वो यूटेरस की वॉल में चिपक कर होता है, इसीलिए यूटेरस की वॉल थिक होती है। वैसे आज तक इस पर कोई क्वेश्चन आया नहीं और एक्चुअली आने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ये प्रोसेस डिटेल हो जाता है एंड देयर आर बेटर थिंग्स टू आस्क एक्चुअली फ्रॉम द बायोलॉजी सेल चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज तक तो इस पर क्वेश्चन नहीं देखा गया, बट यस यू शुड एटलीस्ट गो थ्रू इट। और इसी की वजह से प्रेगनेंसी होती है। तो प्रोसेस एक्सप्लेन इन्होंने कर दिया है कि जो ओवरीज हैं, ओवरीज यूटेरस की वॉल के पास जाकर वेट करते हैं और यूटेरस की वॉल भी थिक हो रही होती है। क्यों? क्योंकि उसे एग को रिसीव करना होता है। रिसीव करना मतलब वो उस पर जाकर स्टिक हो जाती है, एम्बेड हो जाती है। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो यूटेरस की वॉल थिक हो गई है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाएगी। अच्छा, यही इन्होंने प्रेगनेंसी का प्रोसेस बताया है कि अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ यूटेरस अलोंग विथ इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। तो कह रहा है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब एग तो आया लेकिन उसे अगर मेल गैमेट नहीं मिला तो फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, एग के साथ साथ जो थिक यूटेरस वॉल थी के साथ साथ वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ब्रेक डाउन होकर बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट, दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो यही है वो, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन इज द रिलीज्ड एग विच इज अनफर्टिलाइज्ड देन द थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस, क्योंकि अब तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो अब यूटेरस की थिक वॉल की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड द ब्लड वेसल्स, these things are will shed off and this is the reason for bleeding and that is called the menstruation. It occurs once in about 28 to 30 days. The first menstrual flow begins at puberty and it is termed menarche. Important है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले menstrual flow को जो puberty पर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे menarche कहा जाता है। वैसे इस पर भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया पर पूछ सकते हैं। At 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stops. Stoppage of menstrual is called menopause. क्वेश्चन बन सकता है कि जब menstrual cycle stop होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम menopause कहते हैं। Next, initial menstrual cycle may be irregular. It takes some time to become regular. क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा कि रेगुलर होता है, और इनिशियली वो इरेगुलर होता है, बाद में वो रेगुलर हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमिन्ड, boy or girl? Now this is actually a reason, this is actually one of the very primary questions, that whether there is a boy or there is a girl. There is a very simple approach. एग्जाम में पहले इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, फर्टिलाइज्ड एग का ही दूसरा नाम जाइगोट होता है। इट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। तो अब ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की आपस में कॉम्बिनेशन हुई
इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा गया और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के अंदर ही ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं डीएनए के जिससे ये पता चलेगा दैट व्हाट इज द सेक्स ऑफ द बेबी। This instruction is present in a thread-like structure called chromosomes in the fertilized egg. क्वेश्चन बन सकता है कि ये इंस्ट्रक्शन ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइज्ड एग के क्रोमोसोम्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन रहती है। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। क्रोमोसोम कहाँ पर प्रेजेंट है? हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर वो प्रेजेंट है। Now, all human beings have 23 pairs of chromosome in the nuclei of their cell. Important point है, पहले भी क्वेश्चन आया, आगे भी आ सकता है कि human beings के अंदर how many pairs of chromosomes are there? So 23 pairs मतलब 46 chromosomes है। So we can make it out actually 23 pairs है मतलब 46 chromosomes है और ये न्यूक्लियाई में प्रेजेंट है। Now 2 chromosomes out of these are the sex chromosomes। ये 23 पेयर में से 2 क्रोमोसोम मतलब 1 पेयर, एक ऐसा पेयर है जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है और उनका नाम है X and Y। A female has 2 X chromosomes while a male has 1 X and 1 Y chromosome। इंपॉर्टेंट है, फीमेल के अंदर 2 XX होते हैं और मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं, जैसे सेक्स क्रोमोसोम का। तो फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम हो गए XX और मेल के सेक्स क्रोमोसोम हो गए XY। Next, when a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosomes and develop into a female child. If the sperm contributes to a Y chromosome to the egg at fertilization, the zygote would develop into a male child. Let us understand through a basic explanation. Here you can see that in both the cases a female will have X and X chromosome. So this is सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल। तो फीमेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों X और X ही है। अब दूसरा क्रोमोसोम कहां से आएगा? दूसरा क्रोमोसोम मेल से आएगा। पेयर बनेगा तो एक मेल से आएगा। अगर मेल ने अपना, और मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है दे आर XY। नाउ रिमेंबर, अगर मेल ने अपना X क्रोमोसोम फीमेल को दिया तो X और X मिलाकर बनते हैं गर्ल, और अगर मेल ने अपना Y क्रोमोसोम दिया फीमेल गैमेट को, अगर मेल गैमेट में Y क्रोमोसोम है और फीमेल गैमेट में तो हमेशा X ही रहने वाला है, तो X और Y के कॉम्बिनेशन से बनेगा बॉय। अब इस पे पहले क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है कि XY कॉम्बिनेशन क्या होता है, XX कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि फीमेल के अंदर दोनों XX ही होते हैं, मेल के अंदर XY होते हैं। तो अगर मेल गैमेट में X क्रोमोसोम है और फीमेल में तो हमेशा X ही रहने वाला है, तो गर्ल होना है। और अगर मेल गैमेट में Y क्रोमोसोम है और फीमेल में X से अगर उसकी फर्टिलाइजेशन हुई, देन वी विल, दिस इज द जेंडर ऑफ द बॉय, जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी अ बॉय। Here in this diagram they have mentioned different types of organs। ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमारे ब्रेन के पास आप देख सकते हैं। थायराइड ग्लैंड है ये, दिस इज इन आवर नेक। थायराइड ग्लैंड को ही एच शेप ग्लैंड कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम बटरफ्लाई ग्लैंड भी है बिकॉज ऑफ इट्स शेप। नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड। You can see the position, it is around the kidney. And next is the pancreas, also shows the position of ovary in female and testis। वैसे actually ये they should have a different diagram for it, but एक just एक overview देने के लिए उन्होंने समझा दिया है कि कौन सा
पार्ट जो है वो कहाँ पर है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट है, और प्लस ग्लैंड्स भी. नेक्स्ट important point, a very common disease which occurs due to deficiency of iodine. आयोडीन डेफिशिएंसी होने वाली एक डिजीज, उसको बोलते हैं गॉइटर, अ डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड. क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट गॉइटर डिजीज अफेक्ट विच ग्लैंड, और व्हाट डिजीज विल बी कॉज्ड इफ थायराइड ग्लैंड इज अफेक्टेड. नाउ व्हाट हैपेंस when our thyroid gland is not able to produce the hormone thyroxine. Remember, thyroxine is the growth hormone. जब हमारा thyroid gland growth hormone produce नहीं कर पाता, then we have a disease called goiter. Now let us discuss the hormones other than sex hormones. Now the hormones which is produced by pituitary gland, hormones secreted by pituitary gland stimulate testes and ovaries to produce their hormones. And we have also discussed, or we have already discussed, that pituitary gland is a endocrine gland, ductless gland. It is attached to the brain. Now let us now discuss the importance and the disease caused by different. Now sometimes you must have heard that some of our family person or any other person is suffering from diabetes. Now what is this diabetes? Diabetes is caused because the pancreas is not producing the hormone called insulin in sufficient quantity. Question पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया, आगे भी बन सकता है. That what kind of disease a diabetes is? Diabetes is a disease where pancreas is not able to produce insulin hormone. Let us now talk about some more hormones. Now adrenal glands, they produce the hormone adrenaline. Now what is the function of this hormone adrenaline? It helps the body to adjust to stress when one is very angry, embarrassed or worried. तो जब भी आप बहुत गुस्सा हो जाएं, बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाएं या बहुत टेंशन में आ जाएं, तो कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हो रहा है. थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस द थायराइड or the thyroxine hormone, and adrenal gland produces the adrenaline hormone. Both thyroid and adrenal gland secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones. Now important point, that thyroid gland individually thyroxine produce नहीं कर सकता, adrenal gland अपने आप एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर सकता. ये लोग द रेस्पेक्टिव हार्मोन्स कब प्रोड्यूस करेंगे? व्हेन दे विल गेट द ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू the chemicals released or the hormone released by the pituitary gland. So pituitary gland is basically kind of a master gland. Pituitary also secretes growth hormone which is necessary for the normal growth of the person. तो जैसा थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन निकलता है जो ग्रोथ का काम करता है, उसके साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड भी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है जिससे ग्रोथ प्रोसेस होती है. इस पर एक टर्म रहा जो काफी बार एग्जाम में रहा, मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस इज द ग्रोथ ऑफ द इंसेक्ट्स. मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स. इंपॉर्टेंट है कि इंसेक्ट्स का जो ग्रोथ होता है उसमें वो उसे कौन कंट्रोल करता है? उस प्रोसेस को जिसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं उसे इंसेक्ट हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, लोगों ने थायरोक्सिन लगा दिया, आंसर रॉन्ग है. थायरोक्सिन सिर्फ किस में होता है? इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड. तो फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस का काम थायरोक्सिन हार्मोन करेगा, लेकिन इंसेक्ट में ये काम इंसेक्ट हार्मोन. मेटामॉर्फोसिस मतलब उनका पूरा जो कंप्लीट जो डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल डेवलपमेंट है उसकी बात चल रही है. थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. हमने बात की थी कि थायरोक्सिन जो ग्रोथ हार्मोन है उसके प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें आयोडीन की जरूरत पड़ेगी. If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adult. तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि what if the tadpoles are present in a water where there is no iodine, then what will happen? Then they will not become adult. वो adult बनेंगे ही नहीं, वो बड़े हो ही नहीं पाएंगे, उनका मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगा.
they will not become adults if there is no iodine. क्यों? Why? What is with the iodine? Because in the absence of iodine, the growth hormone thyroxine, the primary growth hormone thyroxine प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा. अब थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो उनका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, वो कभी एडल्ट बन ही नहीं पाएंगे, वो टैडपोल ही रह जाएंगे. नेक्स्ट, द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. The physical and mental well-being of an individual is regarded as individual's health. Self-explanatory. Physical well-being, mental well-being is the health. To keep the body healthy, every human being at any age needs to have a balanced diet. The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise. तो basically health के बारे में बात चल रही है कि exercise करनी चाहिए, hygiene maintain करना चाहिए, proper diet लेना चाहिए. अगर आप ये आप नहीं करेंगे तो then you will not get the desired results. Next, role of hormones in completing the life history of insects and frogs. We have already discussed about the life history of silk moth and the frog. The caterpillar insect has to pass through various stages to become an adult moth. So there are different stages. In the development of a caterpillar. हम balanced diet की बात कर रहे थे. Recall that the balanced diet means that the meals include proteins, carbohydrates, fats, vitamins in requisite proportion. कि बैलेंस डाइट में क्या होने चाहिए? सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए. Our Indian meal of roti, rice, dal, vegetable, it is a balanced meal. Milk is a balanced food in itself. Fruits also provide very good nourishment. For infant, mother milk provides all the nourishment that they need. यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सेंटेंसेस से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि जो इन्फेंट होता है उन्हें कंप्लीट नोरिशमेंट कहाँ से मिलता है? तो उन्हें मदर के मिल्क से मिल जाता है. अच्छा, मिल्क खुद में ही अपने आप में एक कंप्लीट बैलेंस फूड होता है, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है. दीज आर द पिक्चर ऑफ वेरियस डाइटरी आइटम्स इन आवर इंडियन कस्टम. नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन. क्वेश्चन तो इस पर नहीं बन सकता, जस्ट गो थ्रू. एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे. It is more necessary for teenagers because the increased activity of sweat glands sometimes makes the body smelly. तो रोज नहाना चाहिए. और जो टीनेज लोग होते हैं उन्हें तो हमेशा, क्योंकि उनकी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं अभी, तो उसकी वजह से अगर वो नहीं नहाएंगे तो स्मेल आ सकती है. ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे. तो ये वही नहाने वगैरह की बात हो रही है, हाइजीन मेंटेन की बात हो रही है. गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लेanलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो. दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन. ये उन्होंने बताया कि दे शुड यूज़ प्रॉपर नैपकिन्स वगैरह एंड दे चेंज. इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है. फिजिकल एक्सरसाइज. वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी. ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर. तो ये बेसिकली फिजिकल वेलबींग की बात हो रही है कि एक बेसिक आपको एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करनी चाहिए. वी शुड से नो टू ड्रग्स. एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. तो यहाँ पे बता रहा है कि ड्रग्स वगैरह पर हमें इंडल्ज नहीं होना चाहिए. सो डू नॉट फील कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर. तो क्या कह रही है? दिस इज सेइंग दैट दिस इज अ पीरियड इन लाइफ वेयर द लॉट ऑफ हार्मोन्स आर रिलीजिंग इन द बॉडी, और कई सारे हार्मोन रिलीज होते हैं. सो वी टेंड टू गेट सराउंडेड बाय लॉट ऑफ थॉट्स. अलग अलग थॉट्स दिमाग में आते हैं, तो इससे आपको कंफ्यूज होने की, इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं. इफ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ यू जस्ट टेक सम ड्रग्स, जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. तो कोई अगर कह रहा है कि नहीं, तुम अगर टेंशन में हो तुम ये ड्रग्स ले लो, तो आपको इन सब चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है. ड्रग्स आर एडिक्टिव. एडिक्टिव मीन्स यू विल बी डिपेंडेंट ऑन देम. वंस यू यूज देम यू आर डिपेंडेंट ऑन देम. If you take them once, you feel like taking them again and again. Why? Because what happens is drug gets dissolved in the blood, and whenever if there is a certain quantity in the blood, then you will have craving for certain kind of drugs. They harm the body in the long run. They ruin health and happiness. You must have heard about AIDS, which is caused by a dangerous virus, HIV. HIV full form is human
immunodeficiency virus. AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. Immune system is affected completely. This virus can pass on to normal person from an infected person by sharing the syringes used for injecting drugs. तो ये वहाँ पर ये ड्रग्स वगैरह को लेने के बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स बता रहा है. हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि अगर आप सपोज ड्रग लेने की एक्टिविटी में पड़ गए तो ड्रग लेने का जो फंक्शन होता है, कई बार लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन से करते हैं. तो अगर आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ इंजेक्शन शेयर कर लिया जिसे HIV हो गया है या एड्स, HIV वायरस उसके अंदर प्रेजेंट है, उसे एड्स है, तो ये इंजेक्शन के थ्रू ये आपको भी आ सकता है. सो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग दैट वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम ड्रग्स. इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू मिल्क. तो HIV की बात हो रही है वायरस की कि ये कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है. ये पहला तो अगर आपने किसी के साथ इंजेक्शन शेयर किया ड्रग्स लेते समय तो एक वहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो सकता है. दूसरा, ये मदर से इन्फेंट बेबी को ट्रांसफ़र हो सकता है मिल्क के थ्रू. The virus can also be transmitted through sexual contact with a person infected with HIV. और ये अगर आपने किसी के साथ बेसिकली ये जो वायरस है ये एक्सचेंज ऑफ सलाइवा या बॉडीली फ्लूइड्स जो होते हैं, ब्लड होता है और भी अलग अलग तरह के फ्लूइड्स जो बॉडी में, उसके एक्सचेंज से ये अफेक्ट हो सकता है. तो अगर आपने ऐसा कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह बनाया, इवन देन ऑल्सो यू विल गेट अफेक्टेड बाय HIV. एडोलसेंट प्रेगनेंसी. You might be knowing that in our country the legal age for marriage is 18 years for girls and 21 year for boys. अब ये चेंज हो गया है, ये टेक्स्ट बुक में 18 है, अब ये दोनों के लिए 21 है. Now this is because teenage mothers are not prepared mentally or physically for motherhood. बात भी सही है एक्चुअली, क्योंकि because becoming a mother is a lot of, it's a mental and a physical responsibility. So early marriage and motherhood cause health problems in the mother and the child. तो अगर हम अर्ली प्रेगनेंसी के फेजेस को देखेंगे, अर्ली प्रेगनेंसी को देखेंगे तो उससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है, मदर को भी होती है और चाइल्ड को भी होती है. इट ऑल्सो कर्टेल्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यंग वुमेन एंड मे कॉज मेंटल एगोनी. एगोनी का मतलब पेन होता है, एज शी इज नॉट रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मदरहुड. तो कह रहा है कि अर्ली प्रेगनेंसी में ये कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी हो जाते हैं तो फिर आपकी करियर अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है, प्लस मेंटल आपको टेंशन भी रहती है, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है. सो वी शुड जस्ट इन अ नटशेल दे सेइंग दैट वी शुड अवॉइड अर्ली प्रेगनेंसी. दैट इज अबाउट ऑल दिस चैप्टर. अब इस पर कुछ क्वेश्चंस और हम देखेंगे. चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जा सकता है. प्रीवियसली पास्ट में जो पूछे गए हैं वो मेटामॉर्फोसिस के ऊपर और डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी के ऊपर पूछे गए हैं, तो उन्हीं पर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए. वीडियो को 4-5 बार देखिए और जो की पॉइंट्स आपको लग रहे हैं उन्हें आप अंडरलाइन करिए. क्वेश्चन जो भी आएगा इसी शीट में से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा.